کیا آپ بھی رات کو ہائی وے پر اکیلے سفر کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کبھی رات کے اندھیرے میں اکیلے ہائی وے پر سفر کر رہے ہوں اور سڑک کے کنارے سفید جوڑے میں ایک دلہن کھڑی نظر آئے تو کبھی گاڑی مت روکنا، کیونکہ کچھ دلہنیں اپنے گھر نہیں جا رہی ہوتی، وہ کسی کو اپنے ساتھ لے جانے نکلی ہوتی ہیں۔ آج جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس نے صرف ایک لفٹ دی تھی اور صبح اس کی گاڑی خالی ملی۔ ڈرائیور کبھی دوبارہ نہیں ملا، لیکن اس رات ایک آڈیو ریکارڈڈ مل گیا، اور اس میں جو آوازیں ریکارڈ تھی انہیں سن کر پولیس والوں نے بھی کیس بند کر دیا۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک پرانے ہائی وے پر ہوا۔ لاہور اور ملتان کے درمیان ایک لمبا سنسان راستہ، جہاں رات کے بعد گاڑیاں بہت کم چلتی تھی۔ اس راستے پر ایک موڑ تھا جسے لوگ کالا موڑ کہتے تھے۔ نام عجیب تھا اور وجہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔ کہتے تھے پچھلے 20 سالوں میں وہاں بے شمار حادثے ہوئے تھے، خاص طور پر شادیوں کی گاڑیاں، کبھی بریک فیل، کبھی ڈرائیور کو نیند آ جانا، کبھی سامنے اچانک کوئی عورت آ جانا اور گاڑی سیدھا ڈیوائیڈر سے ٹکرا جانا۔ پولیس ہر بار اسے عام حادثہ قرار دے رہی تھی، مگر مقامی لوگ ایک الگ کہانی سناتے تھے۔ کئی سال پہلے ایک دلہن اپنی شادی کی رات اسی موڑ پر مر گئی تھی۔ اس کا نام ہنا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے سسرال جا رہی تھی۔ بارش ہو رہی تھی، گاڑی تیز تھی، ڈرائیور نے موڑ کا اندازہ غلط لگایا، گاڑی الٹ گئی، سب بچ گئے، صرف دلہن مر گئی۔ اس دن کے بعد لوگ کہتے تھے کہ رات کے بعد سفید لباس میں ایک لڑکی سڑک پر کھڑی ملتی ہے، جو اسے لفٹ دیتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر ہنستے تھے۔ ان ہی لوگوں میں سے ایک تھا عمران۔ عمران 34 سال کا ٹرک ڈرائیور تھا، مضبوط جسم، سخت مزاج اور حقیقت پسند آدمی۔ اس کا کام شہروں کے درمیان سامان پہنچانا تھا۔ رات کا سفر اس کے لیے عام بات تھی۔ اس کی ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، اور گھر کے خرچے اسے مسلسل سفر پر مجبور رکھتے تھے۔ عمران جن، بھوت، سایہ کسی چیز پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو نظر آ جائے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو نظر نہ آئے وہ دماغ کا کھیل ہوتا۔ اس رات بھی اس نے یہی کہا تھا، اور پھر وہ سفر پر نکل گیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا، دور دور بجلی چمک رہی تھی۔ عمران کا ٹرک سامان سے بھرا ہوا تھا اور وہ ملتان کی طرف جا رہا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر پرانے گانے چل رہے تھے۔ سڑک خالی تھی، کبھی کبھی کسی اور ٹرک کی لائٹ دور نظر آتی، پھر اندھیرا۔ 12:20 پر اس کا فون بجا۔ بیوی کی کال تھی۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ عمران ہنس کر بولا، صبح تک پہنچ جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ بیوی نے کہا، کالا موڑ کے پاس احتیاط سے جانا۔ عمران ہنس پڑا، تم بھی ان لوگوں جیسی باتیں کرنے لگ گئی ہو۔ کال بند ہو گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وائپر مسلسل شیشے پر چل رہے تھے۔ سڑک گیلی تھی، ہوا تیز تھی۔ عمران نے رفتار کم کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک سنگ میل دیکھا جس پر لکھا تھا KM5 کالا موڑ۔ اس نے سگریٹ جلائی، کھڑکی تھوڑی سی کھولی، ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ پھر اچانک ریڈیو بند ہو گیا، خود بخود سکرین سیاہ ہو گئی۔ عمران نے بٹن دبایا، کچھ نہ ہوا۔ اس نے غصے میں گالی دی۔ پھر ٹرک کے اندر عجیب سی ٹھنڈ پھیل گئی، جیسے اے سی فل ہو، حالانکہ اے سی بند تھا۔ اس نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، ٹرک کا پچھلا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب نارمل لگ رہا تھا، مگر دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے خود کو سمجھایا نیند آ رہی ہے، اور آگے بڑھتا رہا۔ ٹرک کالا موڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سڑک کا وہ حصہ بالکل سنسان تھا، نہ دکان، نہ پیٹرول پمپ،
ना कोई गाड़ी, सिर्फ अंधेरा और बारिश। फिर हेडलाइट्स के सामने कुछ सफ़ेद सा चमका। इमरान ने फौरन ब्रेक लगा दी। ट्रक फिसलता हुआ रुका। इसके सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद लहंगा, लाल चूड़ियाँ, दुपट्टा सर पर, चेहरा झुका हुआ। इमरान ने गहरी सांस ली। पागल लोग रात में मजाक करते हैं। इसने हॉर्न बजाया, लड़की हिली तक नहीं। इमरान ने खिड़की खोली। बहन साइड हो जाओ। लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। चेहरा खूबसूरत था मगर हद से ज़्यादा ज़र्द, आंखें सुर्ख जैसे बहुत रोई हो। इसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। इमरान चंद लम्हे खामोश रहा। उसे अजीब लगा मगर इंसानियत भी थी। रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब ना दिया, सिर्फ इतना कहा, देर हो रही है, मुझे घर जाना है। इमरान ने दरवाज़ा खोल दिया। वो खामोशी से अंदर बैठ गई। कपड़ों से पानी टपक रहा था मगर सीट गीली ना हुई। इमरान ने यह देखा, फिर नज़रअंदाज कर दिया। ट्रक दोबारा चल पड़ा। कुछ मिनट दोनों खामोश रहे। फिर इमरान ने पूछा, कहाँ जाना है? लड़की सीधे सामने देखते हुए बोली, जहाँ से सफ़र अधूरा रह गया था। इमरान ने भवें सुकड़ी, क्या मतलब? कोई जवाब नहीं। इसने चोरी से उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, हाथ गोद में रखे हुए, उंगलियों पर मेहंदी लगी हुई थी मगर एक उंगली टेढ़ी थी, जैसे टूट चुकी हो। इमरान ने नज़रें हटा ली। फिर ट्रक के अंदर फूलों की खुशबू फैलने लगी। शादी वाले फूल, मोतिया, गुलाब और साथ ही गीली मिट्टी की बू। इमरान का गला खुश्क हो गया। इसने पानी पिया, फिर आईने में देखा। मुसाफिर वाली सीट खाली थी। इसका हाथ साकत रह गया। फौरन साइड में देखा, वो लड़की वहीं बैठी थी। इसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता इमरान की तरफ मुड़ रही थी। पूरा जिस्म सीधा, सिर्फ गर्दन मुड़ रही थी। इमरान ने ब्रेक लगा दी। ट्रक झटके से रुका। तुम कौन हो? लड़की ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। इसके होंठों के किनारे फटे हुए थे। मुझे पहचाना नहीं? इमरान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसने दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। बारिश तेज़ थी। वो सड़क पर खड़ा सांस ले रहा था। फिर मुसाफिर वाला दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। लड़की नीचे उतरी मगर उसके पांव ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में थे। इमरान पीछे हटा। अस्तगफिरुल्लाह। वो उसकी तरफ बढ़ी। उस रात भी ब्रेक देर से लगे थे। इमरान का दिमाग घूम गया। कौन सी रात? इसने दुपट्टा हटाया। सर का आधा हिस्सा कुचला हुआ था। बालों में जमा हुआ खून, एक आंख का किनारा फटा हुआ, और वही मुस्कुराहट जिस रात तुम ड्राइवर थे। इमरान पत्थर का हो गया। इसकी सांसें रुक गई। यादें बिजली की तरह वापस आई। 20 साल पहले वो जवान था, एक प्राइवेट ड्राइवर। उस रात उसने शराब पी रखी थी। शादी की गाड़ी चला रहा था। बारिश, तेज़ रफ्तार, मोड़, चीखें, हादसा। इसने पुलिस से झूठ कहा था कि स्टीयरिंग फेल हो गया, केस बंद हो गया। वो बच गया, सब बच गए, सिर्फ दुल्हन मर गई। इमरान ने कभी किसी को सच नहीं बताया, कभी याद भी नहीं करना चाहा, मगर आज वो उस सच के सामने खड़ा था। दुल्हन बोली, मैं घर नहीं पहुंची थी इमरान। इमरान रो पड़ा। माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। वो करीब आई। मैं भी तुम्हें माफ़ करने ही आई हूँ। इसने इमरान के चेहरे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अगले ही लम्हे इमरान चीख उठा। जहाँ हाथ लगा था वहाँ गोश्त जलने लगा, जैसे तेज़ाब हो। इमरान ने उसे धक्का दिया और ट्रक की तरफ भागा। वो ड्राइवर सीट में कूदा, चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट ना हुआ। दोबारा
तीसरी बार इंजन खामोश। बाहर दुल्हन आहिस्ता आहिस्ता विंड स्क्रीन के सामने आकर खड़ी हो गई। बारिश के दरमियान उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था, आंखें मुकम्मल सफ़ेद। फिर उसने दोनों हाथों से शीशे पर दस्तक देना शुरू की। 1, 2, 3, फिर ज़ोर ज़ोर से। इमरान चीखता रहा, चल चल। इंजन स्टार्ट हो गया। इसने गियर डाला और ट्रक भगा दिया। दुल्हन गायब, सड़क खाली। इमरान पागलों की तरह रफ्तार बढ़ाता रहा। 80, 100, 120। इसके फ़ोन पर अनजान कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था हिना कॉलिंग। इमरान ने फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर ट्रक के स्पीकर खुद ब खुद ऑन हो गए और आवाज़ आई, इमरान पीछे देखो। इसने नहीं देखा। आवाज़ दोबारा आई, इमरान मैं पीछे हूँ। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसने आहिस्ता से रेयर व्यू मिरर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में दर्जनों दुल्हनें खड़ी थी, सब सफ़ेद लिबास में, सब जख्मी, और सब उसे ही घूर रही थी। दरमियान में हिना खड़ी मुस्कुरा रही थी। इमरान चीखा, स्टीयरिंग हिल गया। ट्रक डिवाइडर से टकराया, पलट गया। लोहे की खौफनाक आवाज़, शीशे टूट गए। अंधेरा। सुबह पुलिस पहुंची। ट्रक उल्टा पड़ा था। सामान ट्रक पर बिखरा हुआ था। ड्राइवर सीट खून से भरी थी, मगर इमरान कहीं नहीं था। ना लाश, ना खून के निशानात, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। तलाश हुई मगर कुछ न मिला। ट्रक के डैशबोर्ड में एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर मिला। पुलिस ने चलाया। शुरू में सिर्फ इंजन की आवाज़, फिर इमरान की हल्की गुनगुनाहट, फिर ब्रेक की चीख, फिर एक औरत की आवाज़, मुझे घर जाना है। और फिर खामोशी। और फिर इमरान रोते हुए, मुझे माफ़ कर दो। फिर शीशे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक। फिर इमरान चीखता हुआ, नहीं, दूर रहो। और फिर एक साथ बहुत सी औरतों की हंसी। और आखिर में सिर्फ एक जुमला, अब हम सब घर जा रहे हैं। और फिर धमाका। रिकॉर्डर बंद। पुलिस ने ऑडियो आवाम को नहीं सुनाई। केस को मिसिंग पर्सन लिखकर बंद कर दिया। मगर काला मोड़ पर उसके बाद लोग एक नई चीज़ देखने लगे। अब वहाँ सिर्फ एक दुल्हन नहीं खड़ी होती। कभी कभार रात को सड़क किनारे कोई सफ़ेद लिबास वाली औरतें नज़र आती हैं, और उनके दरमियान एक मर्द भी खड़ा होता है, ड्राइवर यूनिफॉर्म में, चेहरा खून से भरा, हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा करता हुआ। अगर कोई गाड़ी रुक जाए तो वो मर्द करीब आता है और आहिस्ता से कहता है, लिफ्ट मत देना। फिर उसके पीछे दुल्हन हंस पड़ती है और अगली सुबह एक और गाड़ी खाली मिलती है। अगर आप इमरान की जगह होते तो क्या उस रात गाड़ी रोकते? कमेंट में ज़रूर बताएं। और याद रखें, रात के हाईवे पर हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, अगर आप इमरान की जगह होते तो क्या उस रात गाड़ी रोकते? और ऐसी ही मज़ीद खौफनाक और रियल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश आया? हो सकता है अगली वीडियो हम आपकी कहानी पर बनाएं।